एक शैक्षणिक पहल। एक्सपोजर विजिट टू नालंदा एंड राजगीर, बिहार। आज का यह भ्रमण बच्चों को डोट इतिहास, संस्कृति और ज्ञान से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आदरणीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में चंदन तिलक के साथ इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने। India has a rich tradition of education that goes back thousands of years. From the sacred teachings of the Vedas to the comprehensive studies in Gurukuls, education in ancient India was revered as a path to enlightenment and wisdom. Among the most illustrious of these centers was Nalanda University. Established in the 5th century AD, this magnificent institution was the world's first residential university, housing close to 10,000 students and teachers at its peak, and a library containing close to 9 million books. Chinese pilgrim and traveler Xuanzang also talks about the grandeur of Nalanda in his writings. For over 800 years, Nalanda flourished as a hub of intellectual exchange and innovation, embodying the spirit of open inquiry and academic excellence. However, the university faced its decline and eventual destruction in the 12th century. The idea to revive Nalanda University was first conceived at the 2007 East Asia Summit and continued in 2009 East Asia Summit with an active partnership of Asian countries. Since 2014, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the revival of Nalanda University has been brought to the forefront of India's cultural and educational renaissance. अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। Recognizing its historical significance and potential to contribute to global knowledge, Honorable Prime Minister has championed the restoration and revitalization of this ancient institution. The Net Zero Green campus of the university boasts of world-class infrastructure and has 6 schools and also has 4 centers of studies. The university offers various scholarships to international students. Today, Nalanda University attracts scholars from all over the world, offering programs that integrate traditional wisdom with contemporary challenges. It serves as a bridge between the past and the future, promoting peace, understanding, and sustainable development. The revival of Nalanda University is also bringing international students to India, embodying the ancient Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, truly making India a Vishwa Bandhu, a friend to the world. Dr. Satyanarayan Shastri sir, the Dean of SEAS, to address the students and teachers present here. Welcome. आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। आपका नालंदा यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। और जो सभी हमारे देश के भविष्य बैठे हैं दूसरी लाइन से लास्ट तक, उज्जवल भविष्य, उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद। एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, साथ में मैं डीन इंचार्ज भी हूँ
स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस का। मैं आप ही के बीच से हूँ, मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, ये जो पूरा क्षेत्र है और पढ़ाई, मेरी आयु 50 वर्ष हो गई, आप सब हमसे सीनियर हो, क्योंकि हमारे पास तो अब कम समय है ना धरती पे। 60 के बाद तो कभी भी बुलावा भी आ सकता है, लेकिन आपके पास तो आप हमसे सीनियर हो, ज्यादा समय है, ज्यादा आपके पास सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए भी और आदरणीय टीचर लोग के पास पढ़ाने के लिए भी। और 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाना ज्यादा कठिन काम है। बहुत आसान है ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाना, और उससे भी आसान है मास्टर्स के बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि बच्चा जिम्मेदार हो जाता है। आपको तो हम लोग को तो जिम्मेदार बच्चों को पढ़ाना है ना, हम लोग को बहुत तकलीफ नहीं होती, लेकिन आप लोग की जो तकलीफ होगी वो हमसे कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों का मन भी चंचल होता है। कोई क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच वो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप अपने इंजीनियर बनने के साथ साथ एक हाथ में आपके पेन होती है, एक हाथ में आपके क्रिकेट का बैट भी होता है। दोनों साथ लेके चलना और संतुलन बनाना बड़ा खतरे का काम है। और जितने देश के महान बल्लेबाज हुए हैं या गेंदबाज हुए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी एक अनिल कुंबले को छोड़ के कम ही है। किसी का भी हम नाम नहीं ले रहे हैं, हाँ आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये जो है स्पोर्ट्स में भी बिहार के पटना के दक्षिण पूर्व में स्थित नालंदा खंडहर 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित यह महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे, जहाँ खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इस गौरवशाली केंद्र को 1193 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और मुख्य बिंदु स्थापना 5वीं सदी गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने भी इसे संरक्षण दिया। शिक्षा केंद्र यह न केवल बौद्ध शिक्षा का बल्कि अन्य धर्मों, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और व्याकरण का भी बड़ा केंद्र था। विश्व प्रसिद्ध छात्र यहाँ भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से छात्र पढ़ने आते थे।
चीनी यात्री वेनसांग ने भी यहाँ शिक्षा ली थी। पुस्तकालय। यहाँ विशाल पुस्तकालय था, जिसके 9 मंजिला भवन को धर्मगंज, सत्य का पर्वत कहा जाता था, जिसमें लाखों पुस्तकें थी। तबाही। 12वीं सदी उदास स्माइली 1193 में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया और भिक्षुओं की हत्या कर दी। कहते हैं कि इसकी लाइब्रेरी में 3 महीने तक आग धधकती रही। खोज। लंबे समय तक गुमनाम रहने के बाद 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन भग्नावशेषों को खोजा। वर्तमान स्थिति। यह अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बिहार के राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूपा, जापानी बौद्ध भिक्षु फुजी गुरुजी द्वारा स्थापित शांति व अहिंसा का प्रतीक है। इसका निर्माण 1969 में शुरू हुआ था, जो गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित था। यह सफेद संगमरमर से बना 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें बुद्ध की 4 सोने की प्रतिमाएं हैं। विश्व शांति स्तूप का इतिहास और विवरण। उद्देश्य। इस स्तूप को जापानी बौद्ध भिक्षु फुजी निचिदात्सु ने बनवाया था, जो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। इसका उद्देश्य जापान में परमाणु बमबारी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना था। स्थापना। राजगीर स्थित यह स्तूप 1969 में बनकर तैयार हुआ, जो निप्पोंजान म्योहोजी संप्रदाय द्वारा दुनिया भर में बनाए गए लगभग 80 शांति पैगोडा में से एक है। वास्तु। उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, पिया ने देख लिया आए रे धोखे से, अगर मेरी जान लेगा वो ना
जिंदगी है मेरी। चला चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख